A very good morning to all of you. चलिए, yesterday we were discussing exercise 6.3. Let us continue. So I told you that there are certain methods to find out square root of number. Yesterday I told you that this is the sign of square root, right? Sign of square root you all know. Now this is the sign of square root we know, right? इसको भी हम square root की छत भी बोलते हैं. This is the sign of square root. Yes, I told you that there are certain methods to find out the square root of number. Now, out of those methods, first method that we have started, that is successive subtraction method to find out the square root of number. Successive subtraction method to find out the square root of number. Let us start. Question number 3. I am doing for 169. Find the square root of 169 using the method of successive subtraction. Find the square root of 169 using the method of successive subtraction. So what you have to do? Successive subtraction. इसके नाम में ही मेथड का मीनिंग और मेथड का जो तरीका है वो छुपा हुआ है. सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन मींस कीप ऑन डूइंग सब्ट्रैक्शन. अब क्या सब्ट्रैक्ट करना है, किस में से सब्ट्रैक्ट करना है? दिस क्वेश्चन अराइजेस. स्टार्ट विद दिस 169. आपने 169 से शुरू किया. You will subtract odd number from this. First odd number is 1. You are subtracting and you are getting it to be 168. You are getting 168. Now pick up this 168, subtract the second number, second odd number from this, you will be getting 165. Pick up this 165 and subtract the third, you can say, odd number, and you will be getting it to be 160, right? And then pick up this 160 and subtract 7 from it, you will be getting 153. इससे पहले एक चीज मैंने बतानी थी, चलो बाद में बताती हूँ. Pick up this 153, subtract 9 from it, you will be having 144, sorry. Pick up this 144, subtract next odd number, you will be having 133. Pick up this 133, subtract the next, you can say, odd number. This is 13, this is 120. Pick up this 120, subtract the next odd number, this is 105. Pick up this 105, subtract the next odd number, that is 17. This will be 88. Pick up this 88 and subtract the next odd number, that is 19, and you will be getting 69. Pick up this 69, subtract next odd number, and you will be getting 48. Pick up this 48 and subtract the next number, you will be having 25, right? Pick up this 25 and subtract the next odd number, you will be getting 0. So what we are observing, we keep on doing subtraction. We keep on doing subtracting these odd numbers from the result. Whatever result we are getting, from that result we are subtracting the odd numbers. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 15, 13, 15, 17, 19, 21, 23, and then 25. And there comes a stage when the answer, the difference, the subtraction, it comes out to be 0. ऐसी stage एक आ जाती है जहां पे हमारे पास answer 0 आया. So you have to count that at which step you are getting the answer to be 0. Let us count the step. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. At 13th step, as you are getting this answer to be 0, therefore square root of 169 is 13. So this is called successive subtraction method
to find out square root of a number, that we will keep on doing subtracting, we'll keep on going by doing the subtraction of, you can say, odd number from the result, from the difference whatever you are getting, and you will keep until or unless you will do until or unless you're not getting zero, and the step at which you are getting it to be zero, जिस step पे आपका आंसर जो है zero आ जाएगा, जिस step पे आपका आंसर zero आएगा, that will be the square root of the number. So at 13th step you are getting the answer to be 0. So this is square root of 169 is 13. उससे पहले मैंने आपको एक चीज बतानी थी, रह गई, वैसे आगे भी बताई हुई है, रिकॉल करवानी है आपको। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के बारे में पता है, मैंने आपको बोला था चाहे परफेक्ट स्क्वायर नंबर बोलो चाहे स्क्वायर नंबर बोलो एक ही बात है। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन बी रिटन एज स्क्वायर ऑफ अनदर नंबर। जैसे ये 169 है, इसका स्क्वायर रूट 13 आया, इसका मतलब 169 किसका स्क्वायर है? 13 का। आपको मैंने कल बताया था ना, स्क्वायर रूट शिफ्ट्स ऑन अनदर साइड बिकम्स स्क्वायर। स्क्वायर रूट जब दूसरी साइड पे शिफ्ट करता है तो वो स्क्वायर बन जाता है। हाँ जी मनस्वी। मैम मुझे थर्ड क्वेश्चन में समझ नहीं आया। क्या नहीं समझ आया आपको इसमें? मैंने रब कर दिया आपको सारा, क्या समझ नहीं आया आपको? हम जो अपना 169 डिवाइडेड बाय -1 -2 डिवाइड थोड़ा माइनस सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन है, माइनस का साइन था उसको आप डिवाइड कह रहे हो। हम डिवाइड निकल गया माइनस। हाँ फिर क्या क्या नहीं समझ आया? माइनस में समझ नहीं आया, माइनस में वो समझ नहीं आया मुझे। माइनस करना नहीं आता आपको? 169 में से 1 माइनस किया 160 होता है, आपको नहीं पता मनस्वी? नो। फिर मैं सिर्फ इस बात पे पहुंचना चाहती हूँ कि तुझे समझ क्या नहीं आया। जब हम 169 था पहले ना, हमने 169 डिवाइडेड बाय -1 डिवाइड नहीं है, डिवाइड कहाँ है? 169 में से 1 माइनस किया, डिवाइड तो कहीं था ही नहीं, डिवाइड कहाँ से आ गया? मेथड का नाम ही सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन है, तो डिवीजन कहाँ से आ गई? हाँ, डिवाइड में मुंह से निकल जा रहा है गलती से बार बार। देन फिर मैम 169 -1, उसके बाद मैम -2 से नहीं करेंगे, -3 से सीधा किया आपने। मैंने आपको बोला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने, सुनो ध्यान से। मैम ओके मैम, मेरा कोई नेटवर्क इशू था, मुझे सीधे सुना नहीं था। आप समझ आया? ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने। मैम ओके। कब तक सब्ट्रैक्ट करने हैं मनस्वी? मनस्वी कब तक सब्ट्रैक्ट करने ऑड नंबर? ऑड नंबर तो बहुत सारे होते हैं, कब तक सब्ट्रैक्ट करेंगे ऑड नंबर्स? हाँ जी मनस्वी बोलो। मैम मैं सुन नहीं पाया था मैम ठीक से। हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, जैसे 160 आया उसमें से अगला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किया, 165 आ गया उसमें से अगला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट किया, 160 आया, करते जाएंगे और जब हम एक ऐसे स्टेप पे पहुंच जाएंगे 20 you will be having 48 minus 23 25 और फिर 25 minus 25 equal to 0। ऐसे जब सब्ट्रैक्ट करते जाओगे 13th स्टेप पे जाके आपका आंसर 0 आएगा, इसलिए इसका स्क्वायर रूट 13 हो गया। मैं एक और डिस्कस कर लेती हूँ इसका सेकंड पार्ट 100 वाला। मनस्वी अब ध्यान से सुनना। 100 फॉर 100 फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 100 यूजिंग सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन। 100 का स्क्वायर रूट सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन से हमने फाइंड करना है। लेट मी टेल यू, फर्स्ट ऑफ ऑल 100 को उठाया, पहला ऑड नंबर उसमें से सब्ट्रैक्ट किया, ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करनी है, 2 नहीं करना। देन 99 आंसर आया, उसको उठाया, उसमें से 3 सब्ट्रैक्ट किया, यू विल बी हैविंग 96। देन 5 सब्ट्रैक्ट किया 96 में से 91, 91 में से 7 84, 84 में से 9 75, 75 में से 11 odd numbers I am subtracting, you will be having 64, 64 में से 13 you will be having 51, 51 में से 15 you will be having 36, 36 में से 17 you will be having 19, 19 में से 19 you will be having 0। जो आंसर आया उसमें से नेक्स्ट आपने जो नंबर है और नंबर है वो सब्ट्रैक्ट कर देना है और यू विल कीप ऑन डूइंग सब्ट्रैक्शन अंटिल यू आर गेटिंग 0। यू आर गेटिंग 0 एट विच स्टेप?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10th स्टेप, इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 10. इज इट ओके? और कल मैंने आपको बताया था स्क्वायर रूट शिफ्ट्स ऑन अनदर साइड बिकम स्क्वायर. इसका मतलब अगर 100 का स्क्वायर रूट 10 है तो 10 का स्क्वायर 100 है. दे आर इनवर्स ऑफ ईच अदर. स्क्वायर रूट शिफ्ट्स ऑन अनदर साइड बिकम्स स्क्वायर. ठीक है, हो गया. पहला मेथड हमने डिस्कस कर दिया. हाउ टू फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर यूजिंग सक्सेसिव सब्ट्रैक्शन. दैट मींस जो भी आंसर आता है सब्ट्रैक्शन के बाद आपने ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते जाना है. 1 3 5 7 9 11 एंड until you are getting it to be 0, जब तक 0 नहीं आ जाता. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. Next is find the square root of the following numbers by using prime factorization method. Now we are going to start with the second method of finding out the square root. First was successive subtraction. Now we will deal with the prime factorization method. How to find square root of a number using prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन से हम किसी नंबर का स्क्वायर रूट जो है वो कैसे फाइंड करेंगे. सो आई एम डूइंग फोर्थ क्वेश्चन सेकंड पार्ट. क्वेश्चन फोर्थ थर्ड पार्ट 1764. इसका प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट. देखो बेटे आधा क्वेश्चन तो आपको ये आता ही है बिकॉज इन द अर्लियर क्लासेस यू हैव डन प्राइम फैक्टराइजेशन. आपको प्राइम फैक्टर्स बनाने आते हैं. सो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ. जैसे हम एलसीएम लेते होते थे, ये हमने साइन बना लिया. अब कुछ बच्चे कहते हैं कि मैम ये 4 के टेबल में भी आता है, पर आप लिखोगे नहीं 4. क्यों? क्योंकि हमने कौन सा मेथड है? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. यानी कि हमें कौन सा फैक्टर लेना पड़ेगा? प्राइम नंबर. 4 नहीं ले सकते हम 2 से शुरू करेंगे क्योंकि 2 प्राइम नंबर है. सो 2 लिया, this will be like this, then again 2, this will be like this, then it will be on 3, then again it will be on 3, then it will be on 7. ये हो गई हमारी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन. दिस इज हाउ वी हैव डन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द नंबर. प्राइम फैक्टराइजेशन से स्क्वायर रूट फाइंड करना. जैसे आपको प्राइम फैक्टराइजेशन एज आई एम टेलिंग यू पहले ही आती थी. प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको पहले ही आती थी. जैसे आपको ये तो दूध का टेस्ट आपको पहले ही पता था, पर उससे दही भी बन जाता है, ये बाद में पता चला. इसी तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन पहले ही आती है, पर उससे स्क्वायर रूट भी निकल सकता है, ये आज पता चलेगा. देखिए कैसे. So what you have to do, whatever prime factorization of the number you are getting, you write it to be equal to 1764. It will be written like, आप इसको इक्वल लिखो, किसके इक्वल? 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7. Whatever prime factors you are getting in the sequence, you have to write it like this. सीक्वेंस में आपने प्राइम फैक्टर्स को ऐसे लिख देना है. ठीक होगी बात? सीक्वेंस में यू विल राइट प्राइम फैक्टर्स लाइक दिस. हो गया. अब हमें निकालना है स्क्वायर रूट. स्क्वायर रूट निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट का साइन जाएगा. वी ऑल नो व्हाट इज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट. दिस इज द साइन ऑफ स्क्वायर रूट. इन द नेक्स्ट स्टेप राइट इट लाइक दिस. इधर भी डालोगे साइन, दोनों साइड पे डलेगा साइन. You will put the sign of square root both side. आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट का साइन डाल दिया. आधा क्वेश्चन आपको आता था, प्राइम फैक्टराइजेशन आपको आती थी, राइट? सो आई एम पुटिंग द साइन ऑफ स्क्वायर रूट लाइक दिस. अब आपको एक चीज मैं बताना चाहती हूँ. स्क्वायर रूट ना एक जेल है जिसमें कैदी जो है वो बड़े ऐसे डबल होके जाते हैं. मतलब जब जाते हैं जेल में एंटर करते हैं बड़े मोटे ताजे होते हैं, पर वहां पे जाके उनको इतनी मार पड़ती है कि जब बाहर आते हैं तो आधे बन के बाहर आ जाते हैं. जब हम इस स्क्वायर रूट में से नंबर्स को बाहर निकालेंगे तो 2 पेयर में से जो नंबर 2 बार लिखा हुआ है, आउट ऑफ 2 टाइम्स इट विल कम एज सिंगल नंबर. जेल है, जेल में डबल होके बंदा गया, पर जब बाहर आया तो आधा हो गया. 2 2 2 बार है, बाहर आने पे एक बार 2. 3 3 2 टाइम्स, बाहर आने पे 1 टाइम. 7 7 2 टाइम्स, बाहर आने पे 1 टाइम. So this is square root of 1764. ठीक है? So what I am telling you, this is very important.
that out of a pair means जो एक ही नंबर दो बार लिखा हुआ है, we will take it one time and it will be outside the square root. जेल से बंदे को जब बाहर निकाला तो उसने अपने चोर ने अपने दोस्त को बोला, भाई तू तो बड़ा मोटा था जब जेल में गया, ये तो आधा होके बाहर आ गया. उसने बोला कि मुझे जेल में बड़ी मार पड़ी. इसी तरह से ये दो दो बंदे अंदर गए थे, बाहर जब आए एक एक बन के आ गए. नाउ स्क्वायर रूट ऑफ 1764 मल्टीप्लाई करो. This is 42. This is answer. This is the method. This is the way how to find the square root of a number by using prime factorization method. One more question I will discuss for the better clarity. I am discussing seventh part of this question. Question number 4, seventh part. हो गया note यहाँ तक? Should I rub? Seventh part of question number 4 is seventh part. This is 5929. We have to find square root of 5929 using prime factorization. So first of all, we'll prime factorize. अब ये आपके पास आपको खुद देखना पड़ेगा कि कौन से नंबर पे जा रहा है. Either it will go on 3 or it will go on 3 नहीं 11 7 पे जाएगा. तो 7 पे हम करेंगे. ठीक है, फिर से 7 पे जाएगा. अब सीधा 11 पे जाएगा. ये हो गई इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन. नाउ राइट इट लाइक 5929 is equal to 7 into 7 into 11 into 11. अब छत डाल दो दोनों साइड पे. छत मींस दोनों साइड पे स्क्वायर रूट डाल दो. सो आई एम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, गेटिंग लाइक दिस. ठीक है, दोनों साइड पे स्क्वायर रूट डाला. Now see, when the two pairs, two numbers, that means one pair is there, two numbers are there in the square root, same two numbers, when they will come out from that square root, they will come as single 7. So 5929 का square root क्या हो गया? 76. This is answer. Rest of the parts will be your homework. You will do it yourself. Is it clear? Prime factorization method of finding out the square root, that out of two numbers in the jail, one number will come out. एक number बाहर आएगा. ठीक है? So out of two numbers, one number will come out from the jail. This is the method of finding out the square root. Roll number 1, 3, 5, and then 9. 13, 19, 21, 22, 23, 24, 25. 19 is present. 25, 26, 27, 27 दो बार लिखा हुआ. 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41. अब देखो, अब कुछ बच्चे अभी भी आज ऐसे हैं जिन्होंने अपने नेम के आगे रोल नंबर नहीं लिखा हुआ. एनिक इज वन ऑफ देम, अर्शप्रीत इज वन ऑफ देम, अवनीत सिंह इज वन ऑफ देम, नमन अरोड़ा इज वन ऑफ देम, इवन ओलंकित. बेटे आपकी एब्सेंट मार्क होगी, याद रखना, अगर अपना रोल नंबर नहीं लिखना आपने अपने नेम के आगे तो. ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. हाँ जी मनस्वी, क्या डाउट है बेटे, पूछो. मैम मैम जो दो क्वेश्चन आपने कराए मैम, इनमें दोनों में पेयर्स आ रहे हैं, 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7. मैम अगर हमें सिंगल नंबर आ रहा है फिर बताती 2 into 3 into 5 into 9. नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, करने लगे हम, ये भी केस करने लगे. लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. For each of the following numbers, find the smallest whole number by which the given number should be multiplied to make it a perfect square. अब बताती हूँ उसका मीनिंग क्या है. फिफ्थ क्वेश्चन का मीनिंग देखो क्या है. सबसे पहले फिफ्थ क्वेश्चन में हमारे पास एक नंबर दिया हुआ है. आई एम डूइंग फोर्थ पार्ट 2028.
कहता है इस नंबर को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका स्क्वायर रूट पूरा पूरा निकल जाए। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जिसका जब स्क्वायर रूट करो पेयर्स पूरे पूरे बन जाए, उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम पहले चेक करते हैं कि ये परफेक्ट स्क्वायर इसमें पेयर बन रहे हैं कि नहीं। नहीं बनेंगे तो फिर देखेंगे, पहले हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 2 पे किया, and this is 507, then you will be having on 3, then on 13. This is the prime factorization. So when I am writing this prime factorization, I am observing one thing, that these two is occurring in pair, 13 is occurring in pair, but 3 is such a number which is occurring alone. That means which is not occurring in pair. And if in the prime factorization, even a single number is like this, which is not occurring in pair, that means the number will not be a perfect square. तो सबसे पहले हम लिखेंगे here 3 is not occurring in pair. Therefore, given number is not a perfect square. Given number is not a perfect square. 3 पेयर में अक्कर नहीं कर रहा। नस्वी, आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। 3 जो है वो पेयर में अक्कर नहीं कर रहा, इसलिए गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। उसने पूछा क्या है अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली। He says find the smallest number by which we should multiply to make it a perfect square. स्मॉलेस्ट नंबर बताओ जिससे आप मल्टीप्लाई करो और ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आप बताओ मुझे किसकी कमी है। अगर हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहते हैं, इधर वाली साइड पे किसकी कमी है, बता सकता है कोई? किस नंबर की कमी है? तानिश से पूछते हैं। तानिश बताओ किस नंबर की कमी है? 3 की। मैम 3 की। सो वी विल राइट, we will multiply both sides by 3. पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। उसने पूछा था किससे मल्टीप्लाई करोगे, हमने कहा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कृतिका, आपने कुछ पूछना है? हाँ जी कृतिका, चलो। सो वी विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3। अगला क्वेश्चन क्या है? सेम नहीं, उसने पूछा था फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच वी शुड मल्टीप्लाई, आंसर 3 आ गया। also find the square root of the number so obtained. so obtained का मतलब क्या है? जब आप दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब जो नंबर बनेगा उसका स्क्वायर रूट भी निकालो। चलो हम 3 से मल्टीप्लाई करें दोनों साइड पे, देखें क्या बनेगा। 2028 मल्टीप्लाई बाय 3, 2 इंटू 2, ये जो 3 है ना इसके साथ एक 3 और लगा दो। हमने मल्टीप्लाई कर दिया, हमने दोनों साइड पे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। दैट वाज आवर रिक्वायरमेंट। तो कहता मल्टीप्लाई करके आपके पास जो नंबर बना, क्या बना देखिए जरा, इधर मल्टीप्लाई करके क्या बना। ये बना 6024। whatever number you are getting after multiplication of 3, find the square root of that number. that means अब आप दोनों साइड पे स्क्वायर रूट की छत डाल दोगे। this is 6084, this is 2 into 2 into 3 into 3 into 13 into 13। और सबको पता है स्क्वायर रूट एक ऐसी जेल है जिसमें जब कैदी जाता है तो बाहर आता है तो आधा बन के आ जाता है, उसको इतने ज्यादा वहां पे थप्पड़ पड़ते हैं। तो ये बाहर आया, ये बना 2 1 2 सिंगल 2, आउट ऑफ 2 3 सिंगल 3s, and out of 2 13 single 13. this will be 78. so square root of the number so obtained multiplication करके 78 आपके पास आंसर आ गया। इज इट ओके? 2 क्वेश्चन थे एक ही क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन था किसके साथ मल्टीप्लाई करें, जिसकी कमी थी, आपने खुद ही बताया इसकी कमी है, उसके साथ मल्टीप्लाई हो गया।
फिर उसने पूछा मल्टीप्लाई करके जो नंबर आता है, ये नंबर आया, उसका स्क्वायर रूट निकालो, स्क्वायर रूट की छत डाली, स्क्वायर रूट निकाल दिया। इज इट ओके? क्लियर है सबको? सौमिल, तानिश, तनीषा, तुषार, बिरान, वृत्ति, अर्शप्रीत, नमन, सक्षम, सक्षम मिद्दा, बच्चे गिव मी रिएक्शन सो दैट आई कैन मूव फर्दर। ओके, now come to the next question. Jayant I think wants to ask something. हाँ जी जयंत, क्या पूछना चाहते हो बेटे? पूछो। मैम जो आप नोट्स भेजते हो मैम उसके ऊपर होमवर्क पार्ट डिफरेंट होते हैं और जो आप होमवर्क वाले पेज पे लिखते हो वो डिफरेंट होते हैं। आपने पेज तो वाले हमने कौन से? आपने पेज वाले करने जो मैम भेजते हैं आपको। ओके मैम। चलो, let us start with question number 6. Question number 6 is, for each of the following numbers, find the smallest number by which we should divide to get the perfect square. This time the scenario gets different. हमने फाइंड करना है स्मॉलेस्ट नंबर, पिछली बार था जिससे मल्टीप्लाई करें, अब है जिससे डिवाइड करें। चलो हमें मान लो नहीं आता, हम करने लगे इसका 6 का सेकंड पार्ट, 2925। पहला स्टेप सबको आता है कि हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। चलिए लेट अस स्टार्ट 2925 की प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस इज द प्राइम फैक्टराइजेशन, लिखें जरा इसको। 2925, दिस इज 5 into 5 into 13 into 30 into 3 into 3। क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है? नो। ख्याति देखो इशारे कर दी, कहती नहीं है। तानिश से पूछते हैं, तानिश आप बताओ, है ये परफेक्ट स्क्वायर? मैम नो। क्यों, रीजन क्या है? मैम क्योंकि 13 का पेयर ही नहीं है। 13 का पेयर नहीं है, बिल्कुल सही तानिश ने यहाँ पे पहचाना है। विल राइट, आप लिख लो, मैं बोलती हूँ। Here 2925 is not a perfect square as 13 is not occurring in pair. मनस्वी अगर कुछ नहीं पूछना तो हैंड डाउन कर ले। As 13 is not occurring in pair, तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस बार उसने पूछा किससे डिवाइड करोगे? पिछली बार लाना था, इस बार भगाना है। किससे डिवाइड करें? जो फालतू है उससे डिवाइड करेंगे। सो टू मेक इट अ परफेक्ट स्क्वायर, टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, वी विल डिवाइड बाय 13। वी विल डिवाइड बाय 13। दोनों साइड पे 13 से डिवाइड करो। 2925 डिवाइडेड बाय 13, 5 into 5 into 13 into 3 into 3 डिवाइड बाय 13। पिछली बार हमने मल्टीप्लाई किया था, इस बार हम डिवाइड कर रहे हैं। जो वो कहेगा हम कर देंगे। उसने पूछा बाय विच नंबर इट शुड बी डिवाइडेड, तो डिवाइड कर दिया। अब इसको डिवाइड करोगे, यू विल बी गेटिंग 225 और इधर 13 13 गेट कैंसिल्ड, सो यू विल बी हैविंग 5 into 5 into 3 into 3। ही सेज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ नंबर सो ऑब्टेन्ड। जब आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, 13 की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, जो नंबर बचा उसका क्या फाइंड करो? स्क्वायर रूट फाइंड करो। छत डालो दोनों साइड पे, अगली स्टेप छत डाल दो, छत डाल दो दोनों साइड पे। अब एक नंबर बाहर आएगा, आउट ऑफ 2 5s 1 5, आउट ऑफ 2 3s 1 3। सो स्क्वायर रूट ऑफ 225, दिस कम्स आउट टू बी 15। स्क्वायर रूट ऑफ 225। अब ना मैं आपको ना कुछ नंबर्स के स्क्वायर रूट नोट्स पे लिख के भेजूंगी, जिनको आपने लर्न कर लेना है। आपको पता होना चाहिए, कम से कम 20 तक वाले का तो पता होना चाहिए, ठीक है, कि 121 का स्क्वायर रूट कितना होता है, ठीक है, देन 144 का, देन 169 का, देन 179 का। आई विल राइट एंड यू लर्न, ठीक है। जैसे आपको बाय हार्ट पता होना चाहिए कि 225 का स्क्वायर रूट 15 होता है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट वी हैव लर्न, ठीक है। तो डिवाइड वाला हो गया हमारे पास। by what number it should be divided to make it a perfect square. Now coming to question number 7th question we are going to start with. ध्यान से देखना,
the students of a class 8 of a school donated rupees 2401 in all. सारे बच्चों ने मिलके 2401 रुपीज इकट्ठे किए। वो कहते कि कोरोना चल रहा है, कोई बात नहीं, जिन लोगों के घर में खाने के लिए रोटी नहीं है हम उनको पैसे इकट्ठे करके उनके घर में आटा देके आएंगे। 8th D के बच्चे कह रहे हैं, कितने अच्छे बच्चे हैं। तो सभी ने इकट्ठे किए पैसे, ठीक है। सबने बोला जप जी को कि काउंट कर ले। जप जी कहती कि टोटल अमाउंट जो है वो हमारे पास इकट्ठा हुआ है 2401, इतनी मनी इकट्ठी हुई है। टोटल अमाउंट दैट द चिल्ड्रन दे आर कलेक्टिंग इज 2401, ठीक है। आगे स्टेटमेंट पढ़ें। क्या होता है फॉर प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर फंड नेशनल रिलीफ फंड में पैसे डालने। बच्चे बड़े सियाने हैं। Each student donated as many rupees as the number of the students in the class. Find the number of the students in the class. सारे बच्चों से पूछा जाता है कि मैम ने बोला कि किसी ने बोला, नेशनल प्राइम मिनिस्टर फंड ने बोला कि इतने पैसे आपको देने हैं, ये आप पे कंडीशन है कि आपने इतने पैसे देने हैं। बच्चे कहते हैं कितने कितने पैसे लेके आए हम। कोई कहता हम एक बच्चा 50 रुपए ले आए, कोई कहता एक बच्चा 60 रुपए ले आए, कोई कहता नहीं एक बच्चा 100 लेके आए, कोई कहता एक बच्चा 50 लेके आए। तो कृतिका ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। कृतिका कहती रहने दो, जितने क्लास में स्टूडेंट है ना उतनी मनी लेके आओ। जैसे कि आपकी क्लास में टोटल स्टूडेंट्स आई थिंक 41 है, तो कहते सारे बच्चे 41 रुपीज लेके आओ। यानी कि रिदम भी 41 लेके आएगा, मनस्वी भी, जयंत भी, जपजी भी, सौमिल भी, एवरीवन विल ब्रिंग 41 रुपीज। तो इसमें उसने क्या बोला, each student will donate as much money as the number of students in the class. 41 students, each will bring 41. What we want to find? We want to find the number of the students in the class. तो एक बात याद रखना, मैथ्स में हम जो फाइंड करेंगे उसको पहले लेट करेंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड करना है ना, लेट कर लो। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स x है तो हर बच्चा कितनी मनी लेके आएगा? अवधि से पूछते हैं। अवधि, यू टेल, इफ देयर आर टोटल x स्टूडेंट एंड ईच स्टूडेंट विल ब्रिंग हाउ मच अमाउंट? मैम 41। बच्चे आप अपनी क्लास में घूमने जा रहे हो, 41 की जगह मैंने x बोल दिया। अगर x स्टूडेंट है क्लास में तो मैम हम x को किसी नंबर से, किसी भी नंबर को हम ले सकते हैं। नंबर से क्यों? नंबर से क्यों? अगर 41 स्टूडेंट थे, हर बच्चा 41 रुपीज लेके आता था। अगर x स्टूडेंट है Yes. तो हर बच्चा कितने लेके आएगा? नहीं लेके आएगा जितने स्टूडेंट्स हैं। ख्याति, यस मैम। मैम ख्याति, यू टेल। ख्याति, x जितने स्टूडेंट, हर बच्चा उतनी मनी लेके आएगा। ये तो मैंने एग्जांपल दिया था, आप उस एग्जांपल को रिलेट ही नहीं कर पाए अवधि। ये दिस इज जस्ट एग्जांपल, रिलेट इट विद दिस। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बी x, therefore money that each student will bring, money that each student will bring is equal to rupees x। हर बच्चा x रुपीस लेके आएगा, ठीक है। अभी तो हमने इसको यूज ही नहीं किया, ये तो यूज होना है अभी। x बच्चे हैं, हर बच्चा x रुपीस लेके आएगा। जैसे 41 बच्चे हैं, हर बच्चा 41 लेके आ रहा। अब देखते हैं टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट इज इक्वल टू 2401। अगर मैं आपको बोलूं कि टोटल x स्टूडेंट है, हर बच्चा x रुपीस लेके आया है, तो टोटल कैसे निकालोगे? 41 स्टूडेंट थे ना, हर बच्चा 41 रुपीस लेके आया था, टोटल कैसे निकाला? प्रगति से पूछते हैं। प्रगति, अगर 41 स्टूडेंट है, हर बच्चा 41 रुपीस लेके आएगा, तो टोटल कितने होंगे? सौमिल, 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 यू टेल। चलिए फिर विल डू इट ऑन मंडे, ठीक है। सो देखते हैं मंडे कौन जो बंदा घर से निकला है वो चोर है या कोई घर का ही बंदा है, ठीक है। सो let's twist our fingers.